Now, today I'm going to start with poems. In fact, today I'm going to do two poems with you because they are together with letter to God. But before we start the poems, I want that you should also revise your poetic devices. So quickly I'm going to revise the poetic devices. अब आपके जितने भी poems हैं, right? Starting from Dust of Snow, Fire and Ice, then Ball, then Amanda, then you have The Tale of Custard the Dragon, then Fog, then Tiger, The Animals in the Zoo. You have number of poems. दो सारे के सारे जो poems हैं वो बहुत छोटे लगेंगे आपको और लिटरेरी मीनिंग जो हम बोलते हैं मतलब अगर हम उसका मीनिंग देखते हैं तो दे आर वेरी वेरी शॉर्ट बट इफ वी गो थ्रू देयर डेप्थ तो हमें उनके पोएटिक डिवाइसेस एंड देन द राइम स्कीम इफ देयर इज एनी राइम स्कीम वो एंड व्हाट मैसेज द पोएम वांट्स टू कन्वे इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझना है as per class 10th as well as per the boards. बोर्ड्स में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है. They may ask you different questions. इस particular poem से what does the poet want to convey? What is the hidden theme? तो उनको समझना है and poetic devices को समझना है. So I'm starting with the poetic devices, just quickly revising with you. In this tale of Custard the Dragon, you would be having number of poetic devices. And then in the poem Ball, you will be having. But you can have these in most of the poems. First is alliteration. मैंने साथ में वैसे लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार. We have also done these questions in the 10th, 9th standard. Alliteration यानी कि when the letters in a statement, in a sentence are repeated with the consonant sounds. It's not the vowels but the consonant sounds. Like यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है the gracious green grass grew quickly. So they are giving the same sound, the same kind of sound. The letter G is repeated in the very first starting में. क्योंकि there is a difference between a repetition in between a sentence, between a word and starting. तो जो starting में होता है उसको हम alliteration बोलते हैं. Then repetition, when you find some words are repeated in a sentence. Then simile, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन simile. जब हम किसी भी दो चीजों को, दो इवेंट को, दो लोगों को, किसी को भी कंपेयर करते हैं एंड वी आर यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज, लाइक, अगर हम इनको यूज करते हैं तो दैट्स कॉल्ड एज सिमिली. फॉर एग्जाम्पल white as foam, as black as coal. I think this is there in one of the chapter also. ये आपके लास्ट ईयर वाला जो चैप्टर था जिसमें वो ओल्ड वुमेन बर्ड बन जाती है उसमें भी था. देन एनी कंपैरिजन, एनीथिंग विच इज वेरी डायरेक्ट, मीन्स इफ आई से यू लुक लाइक योर फादर, तो आई एम यूजिंग द वर्ड लाइक और मैं दो जनों को यानी कि आपको और आपके फादर को. इफ आई से यू आर, आपके पापा का नाम लेकर मैं बोलती हूँ यू आर, तो आप आपके पापा तो नहीं हो. जैसे प्रियंका गांधी जो है द फेमस पॉलिटिशियन, शी इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हर ग्रैंडमदर. I can use the word Priyanka Gandhi looks like Indira Gandhi, or I can also say, oh, see, she is Indira Gandhi.
अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि शी इज इंदिरा गांधी, तो वो इंदिरा गांधी तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि मैं उनकी किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को इंदिरा गांधी जी से कंपेयर कर रही हूँ। जैसे इट कैन बी अबाउट स्पीकिंग, इट कैन बी अबाउट अ फिजिकल कैरेक्टर, देन पर्सोनिफिकेशन। जो आपका चैप्टर है, जो पोएम है टेल of Custer the Dragon, in that you have this personification. Then in Ball you have, and now आपका जो personification है ना वो बहुत ही अलग तरीके से आएगा. One is, अगर हम personification बोलते हैं, for example, I say the ball is lying there, और मैं बॉल के लिए मुझे क्या यूज करना है, the pronoun I need to use for ball is it, बट मैं यूज कर रही हूं he is sad. Now when I'm saying that he, so the ball cannot be he, the ball is it, and दूसरा the ball cannot be sad, the ball is non living. तो जब हम ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कुछ ऐसा यूज करते हैं which looks as if we are talking about a human, जैसे हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि ये वाला जो पर्सोनिफिकेशन है, this is very important and it has been coming in the papers many a times. Like यहाँ पे लिखा हुआ देखो, the lightning danced. अब lightning डांस तो नहीं करता है ना, बिजली खड़कती है, बिजली नाचती थोड़ी है, बिजली नाचती थोड़ी है, बिजली आपकी खड़कती है. द बॉल वेंट merrily. The ball went merrily. Now can the ball be happy? यहाँ जो बॉल का मूवमेंट है उसको ऐसा दिखाया as if it was happy. That is called as personification. Then onomatopoeia. Onomatopoeia मतलब those words, they are the sound words. Sound words. जैसे हम बोलते हैं ना, ting, we give these kinds of words. Pop. लिटररी मीनिंग नहीं होता है, बट इनके जो वर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो अपने आप में ही मीनिंग होते हैं. लाइक वी से नाउ दिस मीन्स साइलेंस. देन we have such words like clatter, clinging, clang. In your poems you will be having. Again, one of the very repeated one in the 10th standard syllabus, assonance. आपके सिलेबस में, आपके मतलब की पोएम्स में assonance कई जगहों पर है. आई थिंक इट इज वन इज देयर इन द टाइगर इन द जू में है शायद, एंड देन एनिमल्स वाले में है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसके अंदर है assonance. देन टेल ऑफ कस्टर्ड में भी है. यू हैव इन मेनी. assonance का मतलब होता है, अगर एक सेंटेंस दिया है आपको, जैसे यहाँ लिखा हुआ ट्राई टू लाइट द फायर,
तो अगर आप देखो लाइट द फायर, ये जो फ्रेज है, इसके अंदर जो आपका आई है, द साउंड ऑफ वॉवल आई, इट इज गिविंग, इट इज रिपीटेड. जैसे फ्लीट फीट स्वीप बाय स्लीप, तो डबल ई इज रिपीटेड. इवन अभी जो हम पोयम करेंगे उनमें भी है, दोज हु फेवर फायर. इसके अंदर फेवर फायर में यू हैव एलिट्रिशन बिकॉज एफ इज रिपीटेड, बट दोज हु फेवर फायर में जो ओ है, दिस इज रिपीटेड, सो इट इज एजोनेंस ऑल्सो. देन इवन दो कॉन्सोनेंट्स बहुत कम आता है, you have consonants, that is repeating of the consonant. अगर assonance is repeating of vowels, तो consonants, consonants मतलब consonant, जैसे like, bike. तो आप देख सकते हो Mike likes his new bike में you have assonance as well as consonants. I भी repeat हो रहा है और क भी repeat हो रहा है. Then enjambment means नॉर्मली क्या होता, हमें अपने सेंटेंसेस को हम अपने पोयम में जब फॉर्म करते हैं तो वी यूज द कॉमा, वी मे यूज फुल स्टॉप, वी मे यूज सेमीकोलन, वी मे यूज कॉलन टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. But sometimes the poet does not use any of them. The poet does not use any of them. बिना किसी पंक्चुएशन के अगली लाइन में चले जाते हैं. जैसे मिस सुजान हैड अ स्टीम बोट, फिर कॉमा लगा हुआ है. द स्टीम बोट हैड अ बेल, मिस सुजान वेंट टू हेवन एंड द स्टीम बोट वेंट टू हेल. तो अगर आप देखो तो इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में Miss Suzanne went to heaven and the steamboat went to hell. There is no comma. यहाँ comma है, यहाँ full stop है, but there is no. It is called as enjambment. This is also one of the important one, and repeatedly it has been coming. Then we have transferred epithet. In your syllabus, transferred epithet is there in, I think, ball poem. जो आपका पोएम बॉल है उसमें है आपके ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब हो जाता है जब नॉर्मली हम किसी नाउन को लिखते हैं तो उसके साथ हम एडजेक्टिव डालते हैं, एंड व्हेन उस एडजेक्टिव से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि दैट हैज मॉडिफाइड द मीनिंग. अब यहां पर है स्लीपलेस, स्लीपलेस इज एडजेक्टिव, एंड नाइट्स. अब स्लीपलेस नाइट्स मतलब बिना नींद की रातें, लेकिन यहां पर उसका मतलब बिना नींद की रातें नहीं है. यहां उसका मीनिंग है द पर्सन इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड. फॉर द पास्ट 10 days आई हैड स्लीपलेस नाइट्स. तो इसका मतलब है फॉर द पास्ट 10 days आई वॉज डिस्टर्ब्ड. इट डजंट मीन कि मुझे रात को नींद नहीं आई थी, इसका मतलब है कि मैं बहुत परेशान थी. सो व्हेन वी आर यूजिंग सच एडजेक्टिव्स, एंड उससे आपके बॉल वाले पोएम में है डेस्परेट आईज. आपके बॉल पोएम में है डेस्परेट आईज.
तो डेस्परेट है इसका मतलब तो वैसे होता है दुखी, निराशा। बट वहां पर जब आप पोयम पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज एक्चुअली। देन इज एनाफोरा। एनाफोरा अभी आने वाला जो पोयम है दोनों में है आपके। कभी कभी क्या होता है, आपका एक वर्ड अब एक सेंटेंस में रिपीट होगा तो वो रिपीटिशन बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था रेपिटिशन, वाटर वाटर एवरीवेयर। लेकिन अगर किसी पोयम के अंदर आपका जो है एंड, बॉल पोयम में भी है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी है, इट इज देयर इन मेनी ऑफ द एंड, देन एंड, या बट, फिर सेंटेंस, फिर बट, यानी कि जो बिगिनिंग है लाइन की उसमें वो वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा इज वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट and repeatedly asked poetic device in 10th standard. It's one of the important and repeated one. This is also there in your syllabus, oxymoron. Two words placed together which are completely opposite. जैसे mighty, dead. नोबल आपके बुक में है ही वाला, नोबल बीस्ट। नोबल मतलब शांत, बीस्ट मतलब जानवर। तो जब हम कहते हैं ना क्या तुम जानवर बन गए हो, तो नोबल इज समथिंग विच इज वेरी काइंड पोलाइट एंड बीस्ट इज समथिंग विच इज वेरी एग्रेसिव, एंगर। तो जब ये दोनों साथ में है तो दिस इज ऑक्सीमोरन, समटाइम्स द टीचर्स कॉल एज एंटीथेसिस। माइटी, वेरी पावरफुल, डेड, powerless. This is oxymoron. Two things which are completely opposite. Next is imagery. मतलब जब आप पढ़ रहे हो, when you are while you are reading, some kind of image is formed. मतलब वर्ड्स ऐसे लिखे होंगे जिसको आप समझ नहीं रहे हो, बट आपके दिमाग में होगा वो अच्छा ऐसा, मतलब आपके दिमाग में उसकी तस्वीर आएगी। When he tries to create a visual image in your mind, that's imagery. Then last but not the least is hyperbole.
when any event or action is exaggerated. Exaggerated का मतलब होता है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना. It was so large. अब वो लार्ज ना भी हो, हम कहते हैं इट वॉज सो लार्ज, हम उसको ऐसा क्रिएट करते हैं एज इफ इट वॉज वेरी बिग, मैग्निफिकेंट. तो एक ऐसा इवेंट को बढ़ाना, जैसे लगेगा कि इतनी सी बात को जैसे ना राई का पहाड़ बना देना. दैट्स हाइपरबोल. So class 10, you need to go through all these. You don't need to understand, you don't need to, mug up all these dialogues, means all these definitions. But yes, you need to understand them क्योंकि आपके पेपर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस आएगा. किसको सिमिली कहते हैं, किसको हम हाइपरबोल कहते हैं, किसको हम क्या कहते हैं, ये आपको आना चाहिए. Now I'm moving towards the poems. First is Dust of Snow and second one is Fire and Ice. और आज हम ये दोनों ही कर लेंगे क्योंकि छोटे पोएम्स हैं. The only thing is they are thematic. They are thematic. थीमेटिक का मतलब थीम. नाउ अब आप देखो, सोचो कि डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़े. स्नो मतलब बर्फ. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The poem is written by Robert Frost, who is considered as one of the best poets in the world. इनके जो poems हैं बहुत ही नेचर से रिलेटेड होते हैं. इवन वी आर हैविंग द पोएम्स इन 12th स्टैंडर्ड आल्सो. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो हमारे पोएम्स हैं दे आर इन 12th स्टैंडर्ड आल्सो. And even those children who go for English honors, we have lots of material about Robert Frost. He's one of the contemporary but बहुत ही माने हुए poet है. The main theme is कि जो poet है he is actually depressed and he is sitting under a tree, hemlock tree. The quality of hemlock tree is that it is a poisonous tree. जो आपका hemlock tree है वो poisonous tree है. उसके जो seeds होते हैं they are poisonous. And he is sitting under that. Maybe he had some problem. Suddenly what happens is जिस पेड़ के नीचे वो था या वो गुजर रहा था, something like that. It is not exactly because in some areas it is said that he was moving, कुछ में लिखा he was sitting. तभी क्या हुआ कि उस and it was the month of Jan or Feb, जब बहुत ठंड पड़ रही थी and it was snow all over. तो उस पेड़ के ऊपर एक क्रो था. Again, crow is symbolism for negative energy. हम काला कौवा बोलते हैं तो we speak it for something which is negative. It's not used for positive. तो एक कौवा, एक क्रो जो है, it was supposed to fly, उसे उड़ना था. तो आपको पता है कि जब ये जो बर्ड्स होते हैं ये उड़ते हैं तो ये खुद को पहले साफ करते हैं, फ्लटर करते हैं and then they fly. So the crow fluttered its wings. और जैसे ही उसने अपने पंख शेक किए, फ्लटर किया, वो जो स्नो था उसके ऊपर वो आकर पोएट के ऊपर गिर गया. The poet at that moment was very depressed, sad,
लेकिन जैसे ही उसके ऊपर वो ठंडी सी जो स्नो गिरी, ही रियलाइज्ड, उसको रियलाइज हुआ दैट he has wasted the day, and now जितना टाइम बचा हुआ है, whatever day, whatever time is left over, he should not waste it. That is, crow and hemlock tree both are negative energies. आपके पेपर का क्वेश्चन, symbolism हम बोलते हैं. We also call it as symbolism मतलब वो किसको सिग्निफाई, सिंबल देता है. तो जो क्रो है वो ब्लैक है, काले रंग का है. सो इट इज अ नेगेटिव एनर्जी. at the same time hemlock tree जो है, that's a poisonous tree. उसके जो seeds होते हैं, they are poisonous. So again it is also used for something which is negative. तो ये जो दो चीजें सिंबलाइज करती हैं कि नेचर चाहे कितना भी बिटर क्यों ना हो, इट हैज समथिंग टू गिव अस. ही लर्न फ्रॉम द नेचर, उसने नेचर से इस चीज को सीखा, दैट देयर इज समथिंग गुड इन ऑल द नेगेटिव वे. हर बुराई के अंदर भी, जैसे हम कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, उसी तरीके से हर एक बुरे समय में भी कुछ अच्छा होता है. There is always something good hidden inside the bad. And उससे उसका जो मूड था, जो खराब हो गया था, that suddenly blushed up, that suddenly bloomed up. That is a poem. तो जो थीम है वो है आपका इसके अंदर नेचर, नेचर्स हीलिंग पावर. जैसे आपके उसके अंदर था रेन वाला जो चैप्टर का पोएम था उसमें. एंड देन इसके अंदर जो सिंबल्स हैं वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. क्रो एंड हेमलॉक बोथ आर नेगेटिव. एंड द मैसेज इज देयर इज समथिंग, some goodness in every bad situation. Now come to the poem. The way a crow swooped down on me, the dust of snow. The entire poem is written in one single line. The entire poem is written in one single line. And this is आपका first enjambment. There is no full stop, there is no comma. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had viewed. मतलब, sorry. He was sitting under the hemlock tree. Suddenly, the crow shook its wings. And जब उसने अपने wings को shake किया, तो जो snow, dust of snow means snowflakes. Dust of snow means snowflakes. This has come in the paper. This is one of the common questions that came upon the poet. And that was a hemlock tree. और तुरंत क्या हुआ? As soon as the snowflakes fell on him, it has given my heart a change of mood. It changed his mood from depression to normal. And saved some part of a day I had rued. Rued का मतलब होता है ruined. Rued का मतलब होता है spoiled, खराब कर देना.
वो कहता है कि कम से कम अब जो बचा हुआ टाइम है, I'll not waste it. So this is the poem A Dust of Snow. If you see, you have the way a crow swooped down on me. You have assonance. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart alliteration. Here the word H and saved some part. Again, sir is repeated. Alliteration. Of a day I had rued. So this is आपका, you have enjambment, you have alliteration, you have, then अगर हम इसका राइम स्कीम देखें, crow A, snow A, me tree, heart part, mood rude. यानी कि इसका जो आपका राइम स्कीम है वो है A B बिकॉज ये वाला जो है दिस इज द सेकेंड stanza in your book. So the rhyme scheme is A B. So this is the poem A Dust of Snow. Once again I'm summarizing. This is about nature's healing part. This is that even in the negative situations, like hemlock is a negative element because it's poisonous. पेपर का ही क्वेश्चन है. Crow black, again it is negative, but दोनों के मतलब कि हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठा था और क्रो ने ही वो जो स्नोफ्लेक्स है वो उसके ऊपर गिराया था, and that changed his mood. This is the poem Dust of Snow. The second poem that we would do today is Fire and Ice. If you look into the word fire and ice, both are opposite. Fire garam, ice ठंडा. So fire and ice, oxymoron. Now what is the theme? The poet says कि जो दुनिया है, world है, it's full of greed. The world is full of greed, jealous, avarice जिसको हम बोलते हैं, desires. मतलब हम जो है हर चीज को इंस्टेंटली पाना चाहते हैं. The people are greedy. They want more and more. And ये जो greed, avarice, desires, इसकी वजह से क्या होता है? लड़ाई, झगड़े, war. And this can destroy the world. अगर हम इसी तरीके से greedy, desirous, jealous, अगर हम ऐसा ही रहें, एक दूसरे से झगड़ा करते रहें, तो this will end the world. These will end the world. And दूसरा ग्रुप, दुनिया में दो तरीके के लोग हैं. तो पहले लोगों का मानना है कि ग्रीड, एवराइज, डिजायर्स जो है दे वुड एंड द वर्ल्ड. जो दूसरा ग्रुप है उनका मानना है
कि हेट्रेड, कोल्ड कंटेम्प्ट, मतलब एक दूसरे के लिए वो छुपा हुआ नफरत, that is also, they are also the symbol of destruction. और अगर दुनिया को 2 बार अगर डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा तो शायद एक बार वो डिजायर से होगा और दूसरी बार हेट्रेड से होगा. एंड ये जो ग्रीड, एवराइज, डिजायर्स है, दे हैव बीन सिंबलाइज्ड विथ फायर. फायर का मतलब है ग्रीड, डिजायर, एवराइज, एंड आइस का मतलब है हेट्रेड. तो अगर दुनिया को 2 बार, 2 तरीके के लोग हैं, द वर्ल्ड हैज 2 different opinions. One group opines that the world will end because of desire, greed. Another group says it would end due to hatred. जो पोएट है, he personally believes कि जो डिजायर है वो फायर के जैसा, वो जल्दी फैल जाता है, वो जल्दी फैल जाता है. अब फायर का क्या है, वो जल्दी फैल जाता है. तो that is the one which will destroy the world. लेकिन आगे वो कहता है कि इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब इफ इट हैज टू एंड ट्वाइस, अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा, तो हेट्रेड जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं, सामने हम नहीं बोलते बट वी हैव अ कोल्ड कंटेम्प्ट, वो भी जो है इट इज ऑल्सो सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड. सो हेयर द symbols of fire and ice have been used for desire and hatred. And what he wants to say is that if we want to save this world, we need to balance ourselves. That is the poem Fire and Ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. एक ग्रुप है, उनका मानना है कि आग की वजह से, डिजायर्स की वजह से द वर्ल्ड विल एंड. द ग्रीड, द डिजायर्स ऑफ द पीपल मेक देम फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एंड दिस विल एंड द वर्ल्ड. बट सम पीपल से बिकॉज ऑफ हेट्रेड, एक दूसरे के लिए जो हमने हेट्रेड रखा हुआ है, इनडिफरेंस, हम दूसरों को अलग से देखते हैं, that is also there. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मतलब मैं जितना, I have tasted मतलब I know about desire, मैंने जितना डिजायर के बारे में जानता हूं, उसके अकॉर्डिंग I am favoring those people who say desires will end this world. मैं उनका सपोर्ट करता हूं. फिर वो आगे कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा, पेरिश मीन्स खत्म हो जाना, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Means अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा, तो जो हमारा कोल्ड कंटेम्प्ट है, इनडिफरेंस है, हेट्रेड है, दैट इज ऑल्सो इनफ टू एंड अप दिस वर्ल्ड. सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, एंड पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना. Now let us come to the poetic devices. Some say, some say.
The words, the phrases some say is repeated. So it is anaphora. The world will, it is electrician. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इसमें favor fire is electrician because the letter F is repeated. But अगर पूरा आ जाता है, I hold with those who favor fire. Those and favor दोनों में आपका O कॉमन है, तो एजोनेंस. इन दोनों में आपका जो है एजोनेंस है बिकॉज द वॉवल O इज देयर. लेकिन सिर्फ फेवर फायर आएगा तो इलेक्ट्रिशियन. देन आई थिंक आई नो, repetition. The letter I is repeated. To say that for destruction, eyes is also great and would suffice. Suffice matlab it is also sufficient. The poem is written in enjambment because you can see that there are no commas, no full stop. Fire some say in ice के बाद full stop है, फिर desire और next line के बीच में कोई full stop नहीं है. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, eyes is also great. There is no full stop or something. It is enjambment. And the rhyme scheme of the poem is fire, hatred, desire and fire. तो फायर, डिजायर, फायर तीनों ए है, तो ए बी ए ए. सेकेंड में है ट्वाइस. हम सेकेंड को अलग से ले रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ को. ट्वाइस इज ए, हेट इज बी, आइस इज ए, ग्रेट इज बी, सफाइस इज अगेन ए. क्योंकि यहां सिर्फ 4 लाइन है इसीलिए ए बी ए. And in the second paragraph, it is A, B, A, B, A. Because we have 5. Twice, hate, ice, great, suffice. So ice, twice and suffice has the same sound A. And hate and great have the same sounds B. So इसीलिए A, B, A, B, A. So this is the poem, Fire and Ice. And the title of the poem is oxymoron. The title of the poem is oxymoron because fire and ice both are opposite. Fire होता आपका आग और ice होता आपका ठंडा. So this is oxymoron. And the poet is Robert Frost. So that's the poem. Poems. First we have done Dust of Snow. And the second one is Fire and Ice. Both of them are written by Robert Frost. The first poem is focusing on the nature, its healing power. And the second poem is about the destruction, desires. आपके पेपर में आता है कि फायर जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो डिजायर्स, ग्रीड, जेलस, मतलब ये सब चीजें होती हैं जो हमें एक दूसरे के ऊपर आने के लिए, हम सुपीरियर बनना चाहते हैं. सो वी फाइट विथ ईच अदर.
Whereas hatred, हो सकता है हम उससे बात ना करें, लेकिन धीरे 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 वो भी हमें खत्म कर देगा, क्योंकि दैट इज ऑल्सो, इन फैक्ट इट विल ऑल्सो लीड टू कोल्ड कंटेम्प्ट. These are the poems